कैसे होती है, इसकी जानकारी सभी को है। I now allow Dr. John Britas to ask his supplementary number 1. Thank you, sir. I have returned after my walkout. Let me register here. Sir, I need your protection, sir. Sir, I need your protection. You told me that you will compensate. Please compensate in the form of protection. John, you are one of the very learned members. You seek protection of the chair because I'll be leaving and sir, is coming. Yes, sir. So sir, protection of the chair you are seeking. Sir, hope, sir, he will also protect me and compensate me. Please put your question, John. Sir, you have to compensate, Chairman. Please. Sir, I am shocked at the answer given by the Minister of State. He has clearly contradicted the stand taken by the Cabinet Minister. Can the Minister of State contradict the statement of the Cabinet Minister? That's my first observation. While coming to the supplementary, sir, this is with regard to the assassination sentence given to one of the hapless Malayali women in Yemen. Keralites have been agitated over it. An action committee has been formed. Even Kerala government has written to the government of India. An honorable cabinet minister wrote to me on 27th February. He told me that the government is at it, and he said that I assure you that welfare of Indians abroad is the highest priority for government of India, and Ms. Nimisha Priya's case will continue to receive our full attention. This was the assurance given by the Cabinet Minister. Now see, sir, the answer given by the Minister of State. The matter regarding any consideration of release of Nimisha Priya is a matter between family of the deceased and Nimisha Priya's family. The government of India has washed off its hands. Can the government of India be that insensitive in a matter which agitate Keralites? Mr. Suresh Gopi also is there. He's with me. So my question, supplementary question is that, is it not a fact that the action committee had approached the government of India and arranged $40,000 through the MEA so that the negotiators can be roped in to ensure the release of Nimisha Priya? If so, how can the government of India, in the form of an answer given by Minister of State, wash off its hands? Thank you. Thank you, sir. Sir, I'd like to say that this question has come in an unstarred form, thrice in the Lok Sabha previously and twice in this House. And constantly, the reply of the government of India has been on these lines. So the Honorable Minister has also been persistently following up this case, and which is understandable because it's a very sensitive matter and relates to a person of his state. Sir, I would like to point out that when the Honorable Member was saying that I have contradicted the Cabinet Minister, so he read just part of the answer. So with your permission, may I continue with the other part which the Honorable Member Please. Did not read, either knowingly or unknowingly. So the answer given to the House by the Ministry clearly says in the second part that the government accords the highest priority for the welfare of Indians abroad and provides all possible support to those who fall in distress, including in the instant case. The government of India, sir, is providing all possible assistance in this case. And the Honorable Member just mentioned. Please let him reply. Yes. Oh, I will. Sir, let me, please on. Sir, the matter regarding any consideration towards the release of Ms. Nimisha Priya is between the family of the deceased and Ms. Nimisha Priya's family. Now, as the facts of the case go, sir, this lady in question has already been sentenced to death by the Supreme Court of Sana. She's already been sentenced to death. So their family approached us, and as the statement goes, we provided all possible assistance. We arranged for the mother, Ms. Nimisha Priya, to go to Yemen, although there's a travel ban on that country.
After that, as the honorable member pointed out, so the government of India, so we arranged the transfer of $40,000 upon the written request of the family and facilitated the financial transfers as requested by the family to Sana. The money was transferred immediately after it was received in the ministry's account, and it was made available to the families. Now, the further process that is happening is obviously between the victim's family and the family of Ms. Nishipriya. So I would also like to impress on the August House and the honorable members, sir, that this is a very serious and sensitive matter. It deals with the life and death of an Indian national. And sir, it would, again, I like to underline this, that it would not be conducive to discuss the matter further, as the matter is highly sensitive, and it can also impact the outcome of the case and the efforts that are being made by Ms. Nishipriya's family. So sir, these are the, sir, regarding the assistance provided by Government of India, I would also like to state that following the initial conviction of Ms. Nishipriya in the trial court, we arranged a lawyer through the Indian Community Welfare Fund. He was paid through the ICWF for taking up her case in the higher courts in Yemen. The appointed lawyer contested the conviction in both the appeals court and the Supreme Court, and has also been in touch with the family and the power of attorney holder by the family. Sir, as a government, as a responsible government who takes care of its citizens, we have taken all possible measures, we have done all possible, given all possible assistance in this matter, and it is now between any consideration, any discussion can only happen between the family of the deceased and Ms. Nishipriya's family. Thank you. Thank you. John Brittaji, keeping the sensitivity of the matter, second supplementary briefly. Sir, I'm quite aware about the I know, nuances but in this put case. your second supplementary briefly, But keeping I'm that afraid, mind. sir, the Minister of State is either misguided or rather... Please put your question. Sir, my question. When he says that it is between these two families, deceased and Nimishapriya's family, is it not a fact that, as per Yemeni's laws, the deceased family and Nimishapriya's family cannot interact directly? That is Yemeni's law. You need to have a negotiator there, Honorable Minister. That is the law of Yemen. And further, sir, in these cases, blood money is important. That is the only solution to resolve this very burning issue. Thank you. Sir, my last question. Thank you. There have been reports in the media that Nimishapriya is under the custody of Houthi militia, and Iran government has offered facilitating release of Nimishapriya. Is the government of India aware of it? It's very Has the sensitive government of matter. India worked on it? Very sensitive matter. Thank you. I know, sir. Please. Thank you. Thank you, sir. Sir, when the honorable member is talking about other countries, so I'd just like to state again that we are providing all possible assistance in this case. It is a highly sensitive matter, and we have to take into account the safety and security of the person in question. So, further discussions, again, I'd say that can only impact the outcome. So, like I said before, this question... Please, no interruption, Mr. John Brittas. Sir, regarding the discussion between, as the Honourable Minister pointed out, as per the Yemeni laws, sorry, as the member pointed out, as per the Yemeni laws, sir, the family of Nishipriya, they have appointed a power of attorney, and they have been given a lawyer with our assistance, and they're carrying out these assistance. They're carrying out the discussions. Thank you. Thank you, sir. Third supplementary, Mani Harris Biren, not present. Mr. Sandoz Kumar Pei, nothing is going on record. John Vittas, please take. Mr. Sandoz Kumar Pei, not present. Mr. Sanjeev Arora, not present. Mr. Ritabrat Banerjee, not present. Mr. A. Rahim, not present. So we'll move to question number 92. Manisri Babu Lal Jason Bhai Desai. Manisri
माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, मेरा प्रश्न नंबर। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। पहला सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति जी, मेरा क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि भूकंपीय गतिविधियों के मद्देनजर गुजरात के किन किन क्षेत्रों में, खास तौर पर कच्छ में विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा कौन से तकनीकी उपाय तथा सतर्कता बरती जा रही है और संभावित खतरों को कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय लागू किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा उठाए गए उपायों से लाभ हुआ है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य चूँकि गुजरात से आते हैं तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने ये प्रश्न रखा है, लेकिन साथ ही साथ गुजरात से इसका एक और भी ताल्लुक है। वैसे तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के भूकंप की भविष्यवाणी 100% या 100% करना बहुत कठिन रहता है, लेकिन उसके बावजूद बाकी देशों की तुलना में भारत का प्रयास कहीं गुना अधिक है और इसमें प्रगति भी हुई है। और जब मैंने कहा कि इससे गुजरात का एक और भी ताल्लुक है, तो मेरा तात्पर्य ये था कि सबसे पहली बार जब वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कच्छ में आए भूकंप के बाद देश में पहली बार नेशनल डिज़ास्टर या गुजरात डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल्पना उनके द्वारा लाई गई थी और पहली बार भारत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का यदि कहीं गठन हुआ है तो गुजरात राज्य में हुआ। फिर उसी से प्रेरित होकर के 2005-06 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। इसी प्रकार गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च का कॉन्सेप्ट लाया और उसकी स्थापना भी पहली बार गुजरात में हुई। और उसके उपरांत सन 2014 अगस्त के मास में जब वो प्रधानमंत्री बनकर के केंद्र में आए, तो उसी तर्ज पर केंद्र में भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च लाया गया। और अब जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, गत 10 वर्षों में बड़ी तेज़ रफ्तार से, बड़ी तीव्र गति से इसमें प्रगति हुई है। उदाहरण के तौर पर हमारी जो सिस्मिक ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, ऑब्जर्वेटरीज, जो कि भूकंप का अनुमान भी लगाती हैं, उसकी क्या मात्रा है वो भी तय करती हैं, प्रिपेयर्डनेस के लिए वो चेतावनी भी देती हैं, उनकी संख्या सन 2014 से पहले मात्र 80 थी और पिछले 10 वर्षों में, गत 10 वर्षों में 86 और जोड़ करके वर्तमान में 166 है। अर्थात 70 वर्ष में जितनी ऑब्जर्वेटरीज इस देश में स्थापित की गई थी, उससे अधिक गत 10 वर्षों में। और कच्छ में और भुज के क्षेत्र में जहाँ पर के इसकी संभावना अधिक रहती है, उसी प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में उसमें विशेष तवज्जो दी गई है। उदाहरण के तौर पर आज भी हमारा नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इन क्षेत्रों पर विशेष नज़र रखता है। यदि आप पूछें कि क्या प्रगति हुई है, तो सन 2016 में भारत की ओर से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 पॉइंट एजेंडा रखा था। एशियन एक गोष्ठी हुई थी राजधानी दिल्ली में, जिसमें लगभग 39 देशों ने भाग लिया था और उसके बाद कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया और सन 2047 को लेकर के जो विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार तैयार कर रही है या जो विजन रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से, उसमें भूकंप की दृष्टि से अर्थक्वेक रिस्क रेसिलिएंट इंडिया बाई 2047 ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 2021 से लेकर 2025 एक नए
प्रयोग का भी इस्तेमाल किया गया, मॉक एक्सरसाइजेस, और उसमें विशेषकर भुज और कच्छ के क्षेत्र में ये एक्सरसाइजेज आरंभिक दौर में सन 2021 में की गई। इसके अतिरिक्त कुछ कच्छ और भुज के अनुभव के बाद देश भर में एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि रिट्रोफिटिंग के जो इमारतें कमज़ोर हैं या जो भूकंप वाले क्षेत्र में, अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र में, उनको किस तरह से उनको पुनः निर्माणित किया जा सके, उसके लिए इंश्योरेंस पूल भी बनाया गया और विशेषकर गुजरात और अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया। और ये निरंतर प्रयास जारी है। इसका उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में करता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय बाबू भाई। क्या सरकार यह बता सकती है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों, स्कूलों और पुलों जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक मजबूती के लिए कौन कौन से तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं? धन्यवाद। लगभग 59% भारत का क्षेत्र, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 59% to 60% इज अर्थक्वेक प्रोन, और इसलिए गत कुछ वर्षों में बिल्डिंग कोड कंप्लायंस के दस्तावेज तैयार किए गए कि इन क्षेत्रों में अगर निर्माण कार्य होना है, इमारतों का कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसके लिए क्या मापदंड रहेंगे, क्या उसके लिए प्रिकॉशंस भी रहेंगी और किस तरह के व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी प्रकार पुरानी जो इमारतें हैं उनके निर्माण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वो भूकंप के बावजूद भी जान और माल का नुकसान ना हो पाए और जितना अधिक सुरक्षित हम स्ट्रक्चर्स को रख सके। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स में जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि अस्पतालों को लेकर के, उसमें भी मुझे ये बड़े संतोष होता है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि एम्स नई दिल्ली और भुज क्षेत्र के अस्पताल वो देश के पहले ऐसे अस्पताल थे जिनको के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स के आधार पर पुनः रीस्ट्रक्चरिंग के उस योजना में, उस प्लान में लाया गया। और इसी तरह आने वाले समय में ख़ास तौर से जो अस्पताल ही नहीं, जो बच्चों के लिए स्कूल की इमारतें हैं या इस प्रकार के और जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी पुनः निर्माणित करने के लिए या जो नई इमारतें बन रही हैं उनके लिए नए मापदंड स्थापित करने के लिए समय समय पर कार्य भी हो रहा है और एक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग जिनकी इमारतें पुरानी हो चुकी थी उनको पुनः स्ट्रक्चरिंग करने में संकोच करते आर्थिक कारणों से, तो सरकार ने उस बात को भी बड़ी संवेदनशीलता से लिया है। बहुत धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री, माननीय श्री RPN सिंह महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और नेपाल के अंतर्गत तमाम भूकंप आए हैं और हमें झटके हर 3 महीने 6 महीने में पूर्वांचल और बिहार के तरफ ट्रेमर्स जिसको कहते हैं हम फील करते हैं। आपने अपने जवाब में साफ तौर से लिखा है कि हिमालयन रेंज में एक पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया है जिसके अंतर्गत हमें अर्ली वार्निंग साइंस की वजह से पहले हम लोग को पता कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हम लोग को मिल पाएगी। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट आपने हिमालयन कॉरिडोर पे कर रखा है, क्या इस हमारे क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगी और कब तक इसके रिपोर्ट आ जाएंगे? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है और ये भी गत एक वर्षों में ही संभव हो पाया इसी सरकार द्वारा कि ये जो क्षेत्र है, जैसे इन्होंने कहा कि हिमालयन बेल्ट, उसमें उत्तराखंड भी आता है, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा वो भी हैं, हिमाचल भी है, उनको लेकर के अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक व्यवस्था निर्माणित की गई और साथ ही साथ डिज़ास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग की एक अलग व्यवस्था, वहाँ पे जो भी संबंधित लोग हैं उनको भी और आम समाज को, आम नागरिकों के लिए भी। और इसके लिए
बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भूकंप की 100% भविष्यवाणी पहले से करना या एडवांस फोरकास्ट 100% इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, विच एवर द कंट्री, विच एवर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए अनेकों अलग अलग किस्म के कार्यक्रम, उदाहरण के तौर पर दूरदर्शन पर एक आपदा का सामना नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, मॉक एक्सरसाइजेज की गई, और 2019 में इसी सरकार ने होम ओनर्स गाइड फॉर अर्थक्वेक एंड साइक्लोन सेफ्टी लाया, ताकि जब भी आप प्लान करें वहाँ नई कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो दैट कुड बी अ हैंडी बुक फॉर यू टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन प्रिकॉशंस। इसी प्रकार 2021 में सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी, इस शीर्षक से एक अलग डॉक्यूमेंट पुस्तिका भी रचित की गई, which provides details about the statistical and the building infrastructure. 2016 में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया उसके तहत, और इसी तरह से हिमालयन रेंज के लिए जैसे इन्होंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम विशेषकर उन क्षेत्रों पर केंद्रित करके या उन क्षेत्रों पर फोकस करके प्रारंभ किया गया है। एक नई शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके अनुभव से इसमें और अधिक विकास भी किया जाएगा, वैल्यू एडिशन करने का भी प्रयास रहेगा। माननीय अशोक कुमार मित्तल, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती एस फॉगनॉन कोन्याक। Thank you, Deputy Chairman, sir. I'm grateful to the Ministry for developing an earthquake early warning system for the Himalayan region. Through you, I would like to ask the Honorable Minister if it covers Northeast region, which is a seismic 5 zone, and when will the pilot project being developed be completed? Thank you. Chairman, sir, I'm glad that the Honorable Member has raised a question about Northeast, which is very high on the priority of Prime Minister Modi as well as his government. And as far as the issue of earthquake is concerned, the early warning system, of course, as I was mentioning in response to the earlier question, in addition to the other earthquake regions, it also has a special focus for Northeast. In fact, we have installed observatories which are capable of recording the earthquake tremors of 3.0 and above on the Richter scale, because less than that sometimes may not be very significant. So that is an arrangement, whereas in some other regions it may be even more, 4 and above, but in case of Northeast it is 3.0 and above. Similarly, in the last few years, there has been such a high priority given both to the Northeast as well as to the issue of these natural calamities happening, that you would appreciate that even in the first 100 days of the third term of Prime Minister Modi, which is popularly described as Modi Government 3.0, most of the important decisions taken by the government pertained either to Northeast or to the technological advancements related to all these issues. For example, related to this ministry itself, the Ministry of Earth Sciences, which deals with the earthquakes, Mission Mausam, for the first time, was launched by any government in India during the first 100 days of Modi government 3.0. And correspondingly, in the first 100 days itself, you had a decision to develop semiconductors and to earmark rupees 1,000 crore for space startups. So that creates an ecosystem which is primarily focusing on technological advancements to deal with these issues. Prime Minister Modi has himself paid as many as almost 70 visits to Northeast in the last 10 years. I think which is more than the number of the total number of visits by all the preceding Prime Ministers, in spite of the fact that the immediate past Prime Minister happened to be a member from Northeast, though in the Rajya Sabha. So you can understand, and then at the same time, the ministers in the government were assigned to pay regular visits to Northeast. So every 15 days, there are at least 2 union ministers visiting Northeast,
which is complete departure from what it was in the earlier times when a minister from the center visited Northeast, the newspapers would report a minister from India. So it has created not only the filling up of the physical gap, but also done away with the mental barriers. There was a time when the youth from Northeast, and I'm sure Honorable Member has been a witness to that because she's been a very prominent person there, youth from Northeast were hesitant to come even to the capital city of Delhi. There were so many cases registered against the inappropriate behavior. Today, Northeast children are seen in all the tourism industry, aviation industry. You take a flight, any part of the country you have. So it has created a lot of mainstreaming in the last 10 years. Thank you. Last supplementary, Mayank Bhai, Jaydev Bhai Nayak. सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भूकंप से बचने के लिए आधुनिक मशीनरी और तकनीकी केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है, मगर गुजरात में कभी-कभी 3 और 4 से तीव्रता वाले भूकंप के आ रहे हैं। ऐसे में कई जगह पे मकानों को निरंतर छोटे-छोटे भूकंप आने से वो मकान प्रभावित होते हैं। वो मकान के अगर इंश्योरेंस लिए गए हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले इस भूकंप के कारण इस मकान को नुकसान हुआ है वैसे मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। सप्लीमेंट्री छोटा पूछिए। तो मंत्रालय के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि इस समय में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था, उसका वो सर्टिफिकेट लेके वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सके, जिससे उसको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है उसका भुगतान मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य जी ने अपना जो बिंदु रखा है उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन इसमें ये जोड़ दिया जाए कि इंश्योरेंस का प्रावधान भी इसी सरकार ने लाया और अगर उसकी प्रिसाइज बात की जाए तो उसका नाम रखा गया रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। तो एक रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के तहत यदि भूकंप के परिणाम स्वरूप किसी इमारत में कोई दरार पड़ जाती है, क्रैक्स आते हैं, ये नुकसान होता है, तो एक मैकेनिज़्म है उसकी असेसमेंट करने का कि किस हद तक किस मात्रा में हुआ है और फिर उसके अनुसार ये अपेक्षा की जाती है कि इंश्योरेंस की ओर से उनको उसका मुआवजा या कॉम्पनसेशन मिलेगा। यदि कोई स्पेसिफिक केस ऐसा है कि जहां इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस की अधिकारियों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया है तो उसकी जांच अलग से की जा सकती है, मगर कुल मिलाकर के इन जनरल वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट सिस्टम इन प्लेस and this is also a very imaginative step taken by this government। और उसके तहत जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं अगर उनमें क्रैक आता है तो उनको फिर पुनः निर्माणित करने की भी व्यवस्था रहती है और जो नई बिल्डिंग्स हैं उनमें ये अपेक्षा की जाती है कि उनको नए मापदंड और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कपल्ड होल इकोसिस्टम होम ओनर्स गाइड नाम का एक गाइड बुक भी हमने जारी किया है, सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस भी की हैं। तो अपेक्षा की जाती है कि कंस्ट्रक्शन करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं या कंट्रैक्टर है या जो प्राइवेट व्यक्ति हैं वो उन गाइडलाइंस का पालन करें ताकि उस तरह की नौबत ही ना आए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर कल्पना सैनी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री, डॉक्टर कल्पना जी, पहला सवाल। माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न है, क्या सरकार इस योजना की जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई विशेष अभियान चला रही है? विशेष रूप से महिला व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाली महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रोत्साहन योजना है? उप सभापति जी, मोदी सरकार ने देश के मध्यम वर्ग, देश के गरीब लोग, उसके पिछले लाइफ में सिक्योरिटी मिले, उसमें खास करके पेंशन सिक्योरिटी मिले, उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिले, उसको हेल्थ सिक्योरिटी मिले और उसको फूड सिक्योरिटी मिले, उसके लिए अथाक प्रयास करा है। और ये प्रयास का परिणाम और नतीजा ये है कि आज देश में 920 मिलियन यानी कि 92 करोड़ लोग, यानी कि देश के कुल पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन जो कोई न कोई एक या एक से अधिक उसको कोई सिक्योरिटी मिली है। ये सोशल सिक्योरिटी
के लाभ सामान्यतः 1919 से 3 प्रकार की योजना चालू करी गई थी। उसमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और नेशनल प्रधानमंत्री छोटे व्यापारियों के लिए सहाय योजना के तहत ये योजना का लाभ देश के छोटे व्यापारी या तो छोटे तबके के लोगों को मिलता है। ये योजना के तहत देश में आज तक कुल मिला के 60 लाख लोगों ने ये योजना में हिस्सा लिया है। ये योजना का प्रारूप है उप सभापति जी, जितना पैसा एक 18 एज से 14 एज तक वो जितना कंट्रीब्यूशन देता है इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से दिया जाता है और उसका लाभ लेके 60 साल के बाद उसको 3000 का एश्योर्ड पेंशन दिया जाता है। पेंशन आज के दिन में छोटे लोगों के लिए, छोटे काम करने वाले लोगों के लिए पिछली लाइफ में बहुत उपयोगी होता है और ये योजना देश में लागू है और अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं। हम नेशनल सभी स्टेट में सब विलेज लेवल पर जो कैरियर सर्विस पोर्टल है उसका भी उसको उपयोग करते हैं ताकि उसका लाभ उसको मिले और अपने स्वयं कोई भी व्यक्ति या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को या तो ये व्यापारियों को वेबसाइट पे जाके भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा लाभ जनता को ले सके। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कल्पना सैनी जी। क्या सरकार इस योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम या अन्य कोई विशेष पहल करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी विवरण क्या है? सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, ये योजना का एक्सपेंशन हो, ये योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और उसकी पहुंच बढ़े, उसके लिए नंबर ऑफ टाइप के प्रशिक्षण वर्ग भी चलाया जाता है। डिजिटली भी हम प्रयास करते हैं और डिजिटली अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाते हैं। अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट की ओर से भी इस योजना का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोग इस योजना के साथ जुड़ के उसका महत्तम से महत्तम लाभ ले सके। धन्यवाद। माननीय रामजी लाल सुमन, थर्ड सप्लीमेंट्री, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अशोक कुमार मित्तल, नॉट प्रेजेंट। माननीय सुलता देव जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर वी शिवादासन जी, नॉट प्रेजेंट। सो थर्ड सप्लीमेंट्री गोज टू श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं वर्तमान सरकार ने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग और हर समाज के लोग के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। क्या राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था की गई है और ओडिशा राज्य में इस राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं? धन्यवाद। उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि पेंशन स्कीम और उसका विस्तार बढ़ाना और उड़ीसा में भी उसका लाभ मिलना। पेंशन स्कीम और अलग अलग टाइप की स्कीम जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी देती है, ये गवर्नमेंट ने पहली बार फूड सिक्योरिटी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे के फूड सिक्योरिटी प्रदान की। यही सरकार ने, माननीय उपसभापति जी, बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है। जब कोई अमीर के यहाँ पैसादार व्यक्ति के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, वो इलाज करवा लेते हैं। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति के यहाँ जब बीमारी आ जाती है तब उसके बहुत दिक्कत होती है, पैसा नहीं होता है। और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि देश में कोई भी गरीब परिवार के व्यक्ति बिना दवाई से, बिना ट्रीटमेंट से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसमें से आयुष्मान भारत योजना निकली, वो हेल्थ सिक्योरिटी है। आज देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। पिछले बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ 70 एबव से अधिक एज वाले सभी बुजुर्ग लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया गया। और इस चालू बजट में भी अनाउंसमेंट करा गया, जो गिग वर्कर्स है, छोटे लोग हैं जो हर दिन एक एग्रीगेटर्स के अंडर में काम करता है, ये लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना में लाया जाएगा। तो कुल मिला के वो 65 करोड़ लोगों को एक टाइप की हेल्थ सिक्योरिटी भी हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, यहाँ
प्रश्न पूछा गया कि बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, ये लोगों को के लिए भी उसको भी सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको भी पेंशन मिले, उसके लिए भी व्यवस्था है। और उनके लिए नेशनल विडो पेंशन स्कीम चल रही है और नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम चल रही है। कुल मिला के आज मुझे उपसभापति जी बताते हुए खुशी हो रही है, केवल एक दशक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 18% लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी गई थी जो पेंशनेबल हो। आज मोदी गवर्नमेंट ने 48% लोगों को, जिसको कोई न कोई कैश के रूप में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसका प्रावधान करा गया है। उसमें से हम स्टेट को इंक्लूड नहीं करते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई टाइप की सोशल सिक्योरिटी दी गई है, उसमें फूड सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं है। जो फूड सिक्योरिटी इंक्लूड हो जाती तो देश में 48 में से 65% लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने वाला कोई देश है, ये देश का नाम भारत है, जो इतना बड़ा देश में 92 मिलियन 92 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। अगला सप्लीमेंट्री श्री अनिल सुखदेव राव बोंडे। माननीय अनिल सुखदेव राव बोंडे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये स्कीम बहुत ही अच्छी है, जिनका इनकम कम है, व्यापारियों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए 18 से 40 तक उनको पैसे भरने पड़ते और 60 के बाद में पेंशन मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि उसकी मृत्यु 60 के पहले हुई तो जो भरे हुए पैसे हैं वो उनको रिटर्न होते हैं क्या? और दूसरी बात, स्पाउस और चिल्ड्रेन, जो माइनर चिल्ड्रेन है, उनको वो पेंशन का लाभ एडल्ट होने तक मिलता है क्या? धन्यवाद। उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एनपीएस ट्रेडर्स जो नाने छोटे मोटे कारोबारी है और ये पेंशन में इंक्लूड है, तो उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन है और कि भाई उसकी एज 60 ईयर्स से पहले हो गई तो उसको क्या होगा? उसके एज 60 ईयर के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो विथ इंटरेस्ट उसको पैसा मिल सकता है। उसका पाउस है, उसको भी 50% पेंशन मिल सकता है। और शायद कई बार 10 साल के बाद वो जो उससे विड्रॉ हो जाना चाहते हैं तो विड्रॉ होने की भी उसको सुविधा उससे मिलती है, उसमें बैंकेबल इंटरेस्ट के साथ वो विड्रॉ हो सकते हैं। एकदम फ्लेक्सिबल स्कीम है। ये स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं ताकि पिछले लाइफ में उसको सोशल सिक्योरिटी मिले। 60 साल के बाद वो रिटायर्ड कर गए हो, छोटे लोग हो, 3000 रुपया उसका जीवन का आधार बन सके, इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लाई थी और आज 60 लाख से अधिक लोग उसका लाभ ले चुके हैं और ज़्यादा लोग लाभ ले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लास्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर सिकंदर कुमार। माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार। For giving me the opportunity, with your permission, I would like to know from the Honorable Minister that how an individual gets a national pension scheme and how many individuals registered under national pension scheme in our country. Thank you. Thank you. माननीय मंत्री जी। उपसभापति जी, नेशनल पेंशन स्कीम कई टाइप की है। हर टाइप की स्कीम में अलग अलग लाभार्थी है। प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक लोग हैं, जो छोटे मजदूर लोग हैं, जो अभी हमने स्पेसिफिक प्रश्न था एनपीएस ट्रेडर्स पर, उसका विवरण करा। वैसा ही प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना है। ये छोटे और गरीब तबके के लोग जो कोई ना कोई जगह पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मानधन योजना चल रही है। ये योजना में भी आज तक उसमें भी 45 लाख से अधिक लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और उसमें भी 3000 पेंशन उसको 60 साल के बाद मिलता है। उसमें एक अच्छी व्यवस्था है कि ये किसी के यहाँ घर पे काम करते हैं तो उनके बिहाफ वो भी उस जहाँ काम करते हैं वो उसमें पेंशन जमा करा दे। कोई एग्रीगेटर्स के अंडर में काम करते हैं तो वो भी वहाँ पे पैसा जमा करा दे, या तो कोई कंपनी है और उसके यहाँ कोई सफाई करने वाले हैं या कोई और लोग काम करते हैं, उसके बिहाफ पे कंपनी भी उसका कंट्रीब्यूशन दे दे या तो स्वयं कंट्रीब्यूशन दे। तो
तो ये सभी पैसा, जितना पैसा लाभार्थी जमा करते हैं इतना ही पैसा मोदी गवर्नमेंट की ओर से डाला जाता है। तो उससे भी ऐसे लोगों को भी 60 साल के बाद उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसको भी 3,000 रुपया पेंशन मिलता है। वैसे EPFO में जो एनरोलमेंट होते हैं उसके भी लाभार्थी है, उसको तो ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है। ऐसे लोगों की संख्या 78,000 से 80 लाख के आगे पीछे है। वैसे ही अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना भी सभी के लिए ओपन है। अटल पेंशन योजना में भी आज तक 5.55 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं। और अटल पेंशन योजना उपसभापति जी वो 3,000 से 5,000 तक की पेंशन सिक्योरिटी देते हैं और उसमें अलग अलग एज में अलग अलग कंट्रीब्यूशन उसको देना होता है। और जितना कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार देगी इतना ही कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन लाभार्थी देगा उसमें भारत सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। तो कुल मिला के ये सभी योजना से हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ दे तो मोटा 5 करोड़ से अधिक लोग जिसको पेंशन मिले, 60 साल के बाद पेंशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था आज के दिन में उपलब्ध हो चुकी है। और भविष्य में उसको कॉम्प्रिहेंसिव रूप में टोटल एक अम्ब्रेला के नीचे सारी स्कीम का लाभ मिले और लोग भी उसमें जुड़े और अपनी पिछली लाइफ को सिक्योर करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 94 माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी पटल पे रख दिया जाए। पहला सप्लीमेंट्री माननीय मिलिंद देवड़ा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ ही दिन पहले चीन ने बेजिंग का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस थिएटर है, उस थिएटर का नाम है शुंडी ग्रैंड थिएटर। उस थिएटर में उन्होंने मैंडरिन भाषा में रामायण का पहला बड़ा मंचन आयोजित किया। ये मैं मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही बड़ी एक सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक जीत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि डज द मिनिस्ट्री हैव एनी प्लान्स टू टेक रामायण, महाभारत, आवर क्लासिक आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर टू द फार ईस्ट, to East Asia, to Southeast Asia, where there is a huge influence of our culture on these regions. धन्यवाद। हालांकि विषय है इंक्रोचमेंट ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ म्यूजिक मैस्ट्रो तानसेन। प्लीज माननीय मंत्री जी चाहे तो जवाब दे सकते हैं। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जैसे आपने फरमाया विषय म्यूजिक मैस्ट्रो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक मैस्ट्रो तानसेन के विषय के अंदर है। जो सवाल सप्लीमेंट्री तौर के ऊपर पूछा गया है उसके अंदर तंत्र है और मैं समझता हूँ हर एक मुल्क का ये प्रयास रहता है कि उसकी छवि, उसके एपिक्स और मुल्कों तक पहुँचाए जाएं। किस ज़रिए पहुँचाए जाएं उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहुँचाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि आज की सरकार के अंदर, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अंदर इसको प्राथमिकता दी जाती है और आपका अच्छा सुझाव है, इसको हम कंसिडर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी, विषय मैंने आपको बता दिया क्या सवाल। हाँ, इसी से संबंध है क्योंकि हिंदुस्तान के संस्कृति पे आक्रमण हो रहा है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति पर एक आक्रमण अभी हो रहा है। पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल कुछ और है। नहीं, वही है विषय नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ये युवक और युवती के ऊपर एक सांस्कृतिक सवाल है इंक्रोचमेंट ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ म्यूजिक कार्यक्रम इसमें हमारे माता पिता के बारे में गलत कहा जा रहा है। नहीं जाएगा, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 95 बैठ जाए आप, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। प्लीज टेक योर सीट। क्वेश्चन नंबर 95 माननीय श्री राजीव शुक्ल, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table of the House. First supplementary, माननीय सुजीत कुमार जी। Chairman sir, since the 1950s, China has been illegally squatting on 36,000 square kilometers of our land in Aksai Chin.
largely, sir, because of the incompetence and ineptitude handling of the government of the day and the then Prime Minister. Sir, but because Aksai Chin is an integral part of India, we show it now in maps. And Bangladesh also has been showing both Aksai Chin and Arunachal in its map since 1971. But recently, sir, Chinese government has asked Bangladesh not to show Aksai Chin and Arunachal in its map. So, sir, is the ministry going to do something about it? And this has happened after the change of government in Bangladesh. So, sir, we should intervene and tell Bangladesh government in no uncertain terms that they cannot do so. Will the ministry elaborate? Thank you. Manya Mantri. Thank you, sir. So, the honorable members raised a very old issue. So, with the recent change in the political dispensation in Bangladesh, we are aware of the, we are taking full cognizance and we are keeping full watch on the developments there. And we take all possible measures to safeguard our security and national integrity and our national borders. So regarding the matter which the honorable members raised, so this is a matter which is not really very relevant to the question that was asked. So the question deals with the growing influence of China in our neighboring countries and what we are doing to counteract it. So this is a particular matter related to the Home Ministry, related to the Defense Ministry and the Home Ministry. So I would seek a protection regarding this question. And so I would assure the honorable member that any further details that he wants can be required from the Thank you, Honorable Minister. Honorable Minister has committed, he will give you the Mani Sri Milind Deora ji. Sir, thank you, sir. Thank you for indulging me and giving me the time. This time my question is more specific relating to the topic. On the topic. So the question is about China's influence on India's friendly countries. One issue we should keep in mind, my young friends who are MOSs in this ministry, is that after Donald Trump became president of the US, there is a move to shut down an organization called USAID, which provides assistance to many countries, especially in the global south. With the collapse of USAID's funds to the global south, especially Southeast Asia and other regions, where India enjoys very good relations, before anyone else fills up that vacuum, it would be a good idea if the government increases its developmental assistance from India to ensure that no hostile country towards India fills up that vacuum. Please. Thank you. So, regarding our neighborhood countries, we have established a very comprehensive and well-oiled mechanisms for bilateral engagements with all our partner countries. And sir, our foreign policy is also multi-dimensional, omnidirectional approach under the Honorable Prime Minister's guidance of following our ancient custom of Vasudhaiva Kutumbakam. So we have, our priority remains that providing of development assistance and capacity building as per the needs of the aspirations of neighbors remains the highlight of our policy of neighborhood first. So under BIMSTEC, we have hosted disaster management exercises, centers for weather, climate and energy, and also provided a number of capacity building supports. So we continue to support our neighbors in their development needs and capacity building and continue to bolster our trade and economic ties. And regardless of the change in the situation in the world, we will continue to maintain our relations and we continue to accord the highest priority to our relations with our neighbors. Thank you. Third supplementary, Dr. M. Thambidurai. Just I want to know from the Honorable Minister, through you, sir, China is not only encroaching the Indian economy for marketing their products. And also, sir, I want to know from the Honorable Minister, the relationship which we are whether we are having good relations, regard Sri Lanka is the one of the issue, neighboring country. Now the new government has come over in Sri Lanka. The Sri Lanka president came and met our Prime Minister also here and went to China also. When in these circumstances, there is already we are facing a lot of problem, Kachitub issue and fishermen issue suffering that. Whether China is going to go on influencing Sri Lanka, then what are the actions now the central government is taking
to protect our fishermen and our Indian interest when Sri Lanka is making any problem for that, because the relationship between China and Sri Lanka is going very high. It is a threatening to Indian thing for our Tamil people also. What is the Honorable Minister, they are going to take? Just want to. So I'd like to reiterate that India's relationships with our neighboring countries are based on historical ties, culture exchanges, people-to-people contact, and old and ancient trade routes. Sir, regardless of what the other country in the world is doing, sir, we continue to accord highest priority to our relationship with our neighbors, and we continue to proceed on our development assistance and any other assistance that our neighbors require, including security assistance. Question over. Sir, okay. Complete. Sir, he raised a sensitive issue regarding the Sri Lankan fishermen, sir. So I would beg to remind the honourable member that this question is already listed. Conclude. It is already listed in the House. Question over. Honourable members.